of Dr. S.B. Kishore, sir. So I welcome Dr. Kishore, sir, on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded. And we are all waiting for your lecture, sir. So I request Dr. Kishore, sir, to start your presentation. Thank you. Thank you very much, sir. So good afternoon, one and all. So in the today's session, we are going to discuss about open access journals. Okay, as Dr. Vishal sir requested me to conduct this particular topic. So by considering that fact, we are going to discuss about open access journal. So again, it's a kind request to all of you to be an active, like we have a discussion in our last session. So my first question to all of you, what do you mean by journals? Yes, any one of you. What do you mean by journals? Provide information through newspapers. Provide the information to the newspaper. Okay. Or other any new social media. Okay. Yes, more elaborative. Article about subject or any objectives. That's good. Yes, very much closer to my answer. That's correct. Any more? It is based on only subject, specific subject, or it can be anything. It can include anything. Whether it is based on specific subject or it can include anything. Yes. Okay. Anyway, so we are all the participants in the today's session. We are going to discuss about all these 4 points. Okay, in detail. Of course, the entire session will be based on the practical session only. Okay. So, and all these points is very well covered in my book. Okay, it is very well covered in my book, so you can follow this particular book. So, what is journal? Journal is a one in which all the articles about a particular subject or specific theme is included. It means it might be possible that a specific journal is dedicated to specific subject. It means all the papers that have been published in that particular journal is related to the only computer science or related to the physics or related to the biochemistry or related to the medical science or any other subject that you take. It means it may be based on a specific subject or it may be based on a certain specific themes. A theme means where all the subject teachers can or all the subject scholars can publish their paper in that particular journal. So basically, for example, when you are talking about environment studies, so anyone can publish a paper related to the environment studies related to your topics. So now question arises, when the first journal has been published. So it was published in the January 1665 with the name Journal des Sciences. Okay, it was the first journal that has been published in the 1660 as medical essays and observation. What do peer review? What is the meaning of peer review? Any one of you? What is the exact meaning of term peer review? Yes, anyone? Hello? Evaluation of work by people. Hello? Am I audible? Hello? Yes, sir. Audible.
Hello. Hello. I think there is net. So my question was, what is mean by peer review? Yes, anyone of you? Hello. Evaluating submissions. Evaluating submissions. Okay. Any more? Please welcome. Hello. What do you mean by exactly term peer review? Yes. Yes, Priya madam, continue. Evaluation of your work by other people. Okay. हाँ विशाल सर मैं ज्वाइन हुआ हूँ. हाँ. Yes. Yes, you are right, madam. Evaluating by other people. What is the basic purpose of this? What is the basic role of peer reviewer? To reject the paper or what? So to access quality and accuracy. Okay. The basic role of peer review is to give the suggestion. The basic role of the peer review is what? To give the suggestion or to suggest certain modifications or alterations in your basic research paper. Okay, that is the basic role of what? Peer review. So they are working just like a guide only. Okay. So the first peer review journal was published in the year 1733. Now question arises, which one is the first Indian journal? Okay, the first Indian journal is what? The Journal of Medical Research, which was published in the year 1913. It was the first Indian journal that has been published in the year 1913 with the name Indian Journal of Medical Research. Okay, so that is what about the journal. Now, question arises, why to publish a paper in a journal? Yes, any idea? Why one should publish a paper in a journal? Sir, we get recognition of our work globally and worldwide. That's good. Okay, in order to get the recognition, that is the only thing. That is the only one thing. Just to get the recognition, we are publishing the paper. Okay, let us see. There are many reasons why one should publish a research paper in a specific journal or in a journal. The first one is, of course, it is one of the important criteria of what? Getting a award for the award, getting the award. That is the first criteria. That's why we are publishing a research paper. Okay, apart from this, apart from considering as a basic motivation for publishing a research paper, that unless and until you are not going to publish a paper, you won't be able to get what? Your PhD. Okay, but that is not the basic reason when it has been started. The basic reason is everyone should aware what kind of work is going to be take place or going to take place throughout the globally. Okay, everyone should know what kind of work is going on. That was the basic purpose, and for that purpose only it has been made that one should publish a paper in a journal. So of course, it will create what? Awareness among various co-authors, authors, or community about the work that you are carrying on. Okay, you are working on a certain important topic, so everyone should know what kind of work that you are doing. Okay, that was one of the basic motto. Then to share the state of knowledge with the others, that is another reason. It will help someone to further carry out your work. Suppose it might be possible that due to certain time constraint, you could not be able to add many more things or many more parameters in your work. So someone may carry forward your work. Okay, that is one more reason, so that everyone should know first of all what kind of work that you are doing. That is one more reason that for that purpose you should publish a paper. Of course, like madam said, that it gives the acknowledgement in the form of what? Citation.
in the form of citation. It will give what the acknowledgement to every author. That is one more reason. And it will publishing help you to establish yourself as an expert in the field of your subject or domain. Okay, that is in the form of kind of work that you are doing and how much you are expertise in that particular word. It will your subject or domain. Okay, that is one more reason. For that purpose, you should publish a paper so that everyone should know what kind of work that you are doing and what is that particular work. If your paper is really work, then it might be possible that someone may fund for a particular project depending upon the base upon your work that you are carrying out. Okay, अगर आपका carrying out. Okay, अगर आपका Sorry, ma, Paima. वर्क सही में काफी अच्छा आगे Hello. थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है इधर साइड में Yes, sir. Okay, just a moment. So now question arises, why earlier we used to have what a published paper. हम कहाँ पेपर पब्लिश करते थे, कुछ जर्नल्स में पब्लिश करते थे, but now we are talking about open access journal. Okay, what is the basic reason for this open access journal? क्यों जरूरी है? और हम पहले जिसको बोलते हैं प्रीडेक्टरी जर्नल जहाँ पे हम पब्लिश करते थे, वहां पे अभी हम पब्लिश क्यों नहीं कर रहे और ओपन एक्सेस में हम क्यों जा रहे हैं? ओके, तो अगर आप देखते होंगे तो अभी आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि आपका पेपर पब्लिश करेंगे. ओके, प्लीज रिमेंबर, अगर आप कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश कर रहे होंगे सिंपली कॉन्फ्रेंस में, तो उसका कोई आपको ज्यादा वेटेज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के पेपर, अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में अगर आप पेपर पब्लिश करोगे तो उसका ज्यादा, प्लीज रिमेंबर, उसका ज्यादा कोई अहमियत नहीं रहती है. Okay, because nowadays we are talking about what a Scopus journal, UGC care journal. Okay, so these are some of the important parameters where you should publish your paper. So there are so many journals that are available in the globally, and now it is very much important that you should know where to publish. Okay, and one of the reason is where to publish is what in open access journal is here you will be able to access all the journals इन अ फ्रीली मैनर. जितने भी जर्नल्स है, जितने भी पेपर्स है, वो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, एक्सेस कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. एक्सेस कर सकते हो इसका मतलब आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि क्या है उसमें. ओके, तो दैट वाज द बेसिक रीजन दैट ओपन एक्सेस जर्नल मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन द ईयर 1913 अराउंड. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ टू नो कि कौन सी जर्नल्स ओपन एक्सेस जर्नल्स है, कौन सी जर्नल ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ये कैसे मालूम करेंगे? तो बेसिकली देयर आर 3 पैरामीटर और 3 कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट वन इज इट शुड बी अवेलेबल फ्रीली. ओके, देन सेकंड वन इज इसके जितने भी पुराने कॉपीज है उसके वेबसाइट में अवेलेबल रहने चाहिए ताकि हम जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सके. ओके, इट मीन देयर शुड बी सर्टेन आर्काइव और प्रोसेसिंग मेथड शुड बी देयर इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट आर्टिकल. एंड द लास्ट वन इज इट शुड, वहां पे हमको कॉपीराइट का, अगर कॉपीराइट अगर होगा उस पेपर से रिलेटेड तो उसमें स्पेसिफिक पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन रहनी चाहिए कि ये पेपर कॉपीराइटेड है या नहीं है, अगर है तो किस टाइप का कॉपीराइट उसमें है. ओके, ऑल दिस 3 इंफॉर्मेशन शुड बी देयर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जर्नल. ओके, सो एनी जर्नल व्हिच फॉलो ऑल दिस 3 दे आर कम्स अंडर व्हाट ओपन एक्सेस जर्नल. नाउ इन India, it has been started by InfluMnet, called as Information and Library Network. इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे ओपन एक्सेस जर्नल, इसके लिए फॉर द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट पर्पस.
Okay, for the university and institute purpose, this movement has been started, Open Access India, so that every researcher should be able to access the paper. Every researcher should be able to access the paper, not only the current paper, but also the old paper in the form of what? Archives. Okay, that was the basic reason it has been started. And these are some of the agencies like Indian National Science Academy, then Indian Journal, ज्ञानकोश बाय इग्नोर, यूजीसी इन्फ्लिनेट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरियस ओपन एक्सेस जर्नल के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि अगर हमको ये मालूम करना है कि ग्लोबली कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? यस, एनीवन आइडिया? ग्लोबली कौन कौन से जर्नल्स है ये हमको अगर मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? So for that purpose, one specific website is maintained called as Directory of Open Access Journal. Directory of Open Access Journal, जहां पे आपको जितने भी ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस है वो सब आपकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ओके, वी विल सी इन द प्रैक्टिकल सेशन. ओके, लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल सेशन कैसे वर्क करता है ये. तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ. देखिए ये इसका क्या है, हम बोल सकते हैं इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर है या इंटरफेस है. तो हियर यू कैन स्पेसिफाई कि कौन सी जर्नल्स को आपको देखना है. इन ऑल फील्ड्स मैं ले रहा हूं यहाँ पे सब्जेक्ट मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस. Okay, so there are more than 336 journals are there. Now question arise कि मुझे पेपर तो पब्लिश करना है लेकिन फ्री में पब्लिश करना है, तो ऐसे कोई जर्नल की लिस्ट मुझे मिलेगी क्या जो फ्रीली जहां पे मैं पेपर पब्लिश कर सकूं? ओके, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर जर्नल. इस वेबसाइट में आपको वो सब भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है, विदाउट फीस पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल. तो देखिए टोटल 173 जर्नल है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं. देन सेकंड वन, सपोज जैसे कि हम पेपर पब्लिश करते हैं तो वहां पे कॉपीराइट किसके पास रहता है? पब्लिशर के पास रहता है कि हमारे पास रहता है? पब्लिशर के पास. पब्लिशर के पास रहता है. लेकिन हम यहाँ पे पेपर अगर पब्लिश करते हैं तो हम ऑथर्स विल रिटेन द ऑल राइट. तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहां पे ये ऐसे जर्नल्स है 109 जर्नल जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पेपर पब्लिश करते हैं तो उसकी कॉपीराइट जो रहती है वो हमारे साथ रहेगी, ऑथर के साथ रहेगी, नॉट विद द पब्लिशर. ओके, सो फॉर दैट पर्पज, और साथ में आपको क्या मिलेगा, DOAJ का एड्रेस सील भी आपको मिल जाएगा. तो ऐसे कितने जर्नल है, खाली 7. ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वन बाय वन, तो ये मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएंगी. फ्रंटियर इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, लॉजिकल मेथड्स इन कंप्यूटर साइंस, जर्नल का नाम है बिग डेटा माइनिंग एंड एनालिटिक्स. ओके, देखिए यहाँ पे लिख रहा है नो चार्जेस. वेबसाइट पे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी वेबसाइट खुल जाएंगी और वहां पे मुझे उस जर्नल के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ यूनिवर्सल कंप्यूटर साइंस, लास्ट डेट कौन सी डेट में इसको अपडेट किया गया, वेबसाइट, हमने कौन से बारे में बोला है यहाँ पे, नो चार्जेस के बारे में. और कॉपीराइट के बारे में क्या बता रहा है वो, CC/ND. मैं बताता हूँ इन सबका मतलब क्या है, CC/ND वगैरह वगैरह, या फिर CC/NC, ये जो भी है टर्म्स, इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव कॉमन्स. तो इसका मतलब क्या है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा. So thing is that DOAJ maintains all the journals across the globe, and not only that, you will be able to get the information about all the journals where you will be able to publish your paper freely or not. क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हमारे दिमाग में ये रहता है कि हर कोई हमको ये बताता है कि आपको तो पैसा पेड करना ही पड़ेगा पब्लिश करने के लिए. ऐसे कोई भी जर्नल्स अवेलेबल नहीं जो फ्रीली अवेलेबल है. तो इट इज नॉट लाइक दैट. देयर आर सर्टेन जर्नल्स वेयर यू कैन पब्लिश योर पेपर फ्रीली. Okay, so using this particular website, you will be able to get the information about all the journals. This part is clear to all of you? Yes, sir. Okay, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 109 जर्नल बता रहा है, 109 जर्नल जहाँ पे ये हम विदाउट फीस में हम पब्लिश कर सकते हैं. ओके, जिसको बोलते हैं, देखो इसका नाम क्या बोलते हैं हम इसको, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, APC.
विदाउट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब पेपर पब्लिश जो हम कर रहे हो तो क्या बोलते हैं बेसिकली हम आर्टिकल, तो उसके लिए हमको कोई पेड नहीं करना है। ओके, और सेकंड देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ऑथर रिटेन ऑल द राइट्स, ऑथर विल रिटेन ऑल द राइट्स। So using this particular website, you will be able to know all the journals that are available, and also you will be able to filter. Also, you will be able to filter based upon whether you want to publish journal or पेड जर्नल और विदाउट पेड जर्नल। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कितने जर्नल बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 336 बता रहा है। 336 में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस थ्री पैरामीटर। ओके, so that is what all about the DOAJ. Next part is we are going to discuss about Creative Commons. जब भी आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट किसके पास रहता है, ऑथर के साथ ही रहता है या फिर पब्लिशर के पास रहता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का एग्रीमेंट किया गया है, किस तरह का एग्रीमेंट किया गया। बेस्ड अपॉन दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट द पेपर इज written by the author or it may be written by the publisher. Okay, now being a author or being a publisher, it might be possible that कुछ part उसमें का क्या कर सकता है, पब्लिशर या ऑथर किसी और के साथ शेयर कर सकता है। तो शेयर करने के कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। ओके, क्या कौन सी चीज को हम शेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज को शेयर नहीं कर सकते, ये सब चीजों के बारे में। तो देखिए, तो इसको बोलते हैं हम इट ऑफर्स अ फ्री लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स क्या है, इट्स ऑफर्स अ फ्री लाइसेंस टू डिजाइनर टू मेक देयर जॉब एक्सेसिबल टू द पब्लिक। This license enable developer to allow other to use their work at some time in advance, and some of the right text are reserved under the what Creative Commons only. कौन कौन से है, देखिए पहला CC by I, इसका मतलब क्या है, यूजर आर फ्री टू कॉपी कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं उसको, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसी और के साथ, मतलब किसी और की इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं, और किसी और के साथ क्या कर रहे हैं, हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसके लिए, इवन आप कमर्शियली उसको किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा परमिशन आपको क्या कर रहा है, ओरिजिनल ऑथर दे रहा है। ओरिजिनल ऑथर जब आपको इस तरह की परमिशन दे रहा है तो इसको बोलते हैं हम सीसी बाय, इसको बोलते हैं हम सीसी बाय। when the original author is giving you all this permission, that is what one is able to copy, adopt, remake, redistribute the content even for the commercial purpose. Okay, second one है CC by NC. CC by NC इसका मतलब क्या है, user are free to copy, adopt, remake, redistribute the content, okay, but not for the commercial purpose. commercial purpose में नहीं, मतलब आप उसमें जो भी चेंजेस करना है करो, लेकिन उसको आप कमर्शियली किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। ओके, तब ये आपको इस तरह का लाइसेंस मिलेगा। 10 yeses by yeses, users are free to copy, adopt, remake, redistribute the content even commercially, but user must give appropriate credit। मतलब आप रीडिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हो, लेकिन आपको ओरिजिनल ऑथर की इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा आपको, उसको हम बोलेंगे हम साइटेशन फॉर्म दो या फिर उसको एक्नॉलेज करो। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज बाय यस ए। ओके, देन बाय एनडी, यूजर्स आर फ्री टू कॉपी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, कॉपी कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, इवन उसको क्या करना है, ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट भी देना है, लेकिन दे मे नॉट बी रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क विद चेंजेस। मतलब किसी और के साथ आप ओरिजिनल कॉपी एज इट इज किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाय एनडी। So like that way, all these different types of what license are there that one can share with the various what you can say that the developers or researchers or the scholars. किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथर है और आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कौन से पैरामीटर, किस बेसिक पे आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये हम क्या बता सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस बता सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट वन देख लो एक बार, users are free to copy and redistribute the content, user must give the appropriate credit to the creator। okay, ये भी ठीक है, but user may not use the content for commercial purpose। ठीक है, commercial purpose के लिए नहीं है, देखिए NC नहीं है। they the work may not be redistributed with the changes, मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस करके भी आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको ओरिजिनली एज इट इज शेयर करना पड़ेगा। ओके, so these are what different types of license that user can give। Now question arise कि सपोज आपने कोई पीपीटी बनाई है और आप उसको किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस कैसे दिया जाए? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर?
Hello. Yes, sir. Okay, assume that you have created one PPT or any research paper for that matter, and you want to share with the others. Now, how to give the creative commons only, और इसको हम बनाते कैसे हैं? Okay, so that is one thing. That is what we are going to discuss in the practical session. It's very simple. कुछ नहीं है, basically image है. This is nothing but simply image. तो हम इसको देखेंगे practical point में. Okay. Here you will find the various logos. तो आपको कौन सा चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए. आपको जो भी चाहिए, इतने सारे हैं, बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, मुझे कमर्शियली किसी को बेचना नहीं है, खाली उसको शेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज, या फिर उसको सेव करना है कहीं सेव कर लो, कॉपी इमेज कर लो, और फिर आपकी जो भी पीपीटीज है जिसको आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल ये पीपीटी को मैं एट द बिगनिंग में दे देता हूँ. यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, किसी को भी क्या पता चलेगा, सभी को ये लगेगा कि भाई ये जो पीपीटी हम किसी के भी साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ओके, सो बाय knowing this symbol, by seeing this symbol, anyone will be able to know the kind of permission that the author has given for accessing this particular PPT. Clear? In the same manner, you will be able to share a different e-resources. It may be picture, it may be music, or it may be certain फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल. तो ऐसे जितने भी टाइप के ई रिसोर्सेज बन रहे होंगे, वो सब हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स मोड में हम बता सकते हैं कि हमको किस टाइप की परमिशन यूजर के साथ शेयर करना चाहते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Good. The next part here is, now we are going to discuss about Sherpa and Romeo. Okay, now basic question is, अगर आपको ये मालूम करना है कि हर एक जर्नल के अंदर की कॉपीराइट क्या क्या है, कौन से जर्नल की मतलब कॉपीराइट पॉलिसी क्या है, ये कैसे मालूम करेंगे आप? डू यू थिंक इट पॉसिबल टू एक्सेस ऑल द जर्नल वन बाय वन? हर एक जर्नल को ओपन करो, चेक करो उसकी कॉपीराइट पॉलिसी क्या है, फिर सेकंड जर्नल ओपन करो, वेबसाइट ओपन करो, उसकी पॉलिसी देखो क्या है, थर्ड जर्नल ओपन करो, उसकी पॉलिसी क्या है. So question arise, it is impossible to check the policies of all the journal by visiting individual website. So all these things can be included within this Sherpa Romeo. Okay. So assume researcher want to access the certain open access journal and would like to check the copyright and other information related to the journal. Okay. Here the question arises, how it can be possible without visiting the individual publisher website. बिना किसी पब्लिशर के इंडिविजुअल वेबसाइट पे गए हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन फॉर दिस इज व्हाट? शेप्रा रोमियो. ओके, जहां पे जितने भी जर्नल्स है उन सब की इंफॉर्मेशन एक जगह मेंटेन की गई है, और जहां पे हम उनकी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं. ठीक है, तो कैसे देखते हैं? विद एन प्रैक्टिकल. So this is really useful to all the researcher. Without visiting the individual website, will be able to check the information about all the journal and their certain related information related to that journal, as well as the copyright information of that journals. It is taking a time.
देखिए ये इसका इंटरफेस है। ओके, तो हम यहाँ पे नाम दे रहे सपोज जर्नल टाइटल, अगेन से कंप्यूटर, जिसके टाइटल में कंप्यूटर हो कहीं ना कहीं, सर्च। You can search it using a different method, using either journal title or by means of ISSN number or by means publisher name. कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन है ब्राउज बाय कंट्री। देखो मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, ब्राउज बाय कंट्री। तो आपको मालूम हो जाएंगे कि अफगानिस्तान के तकरीबन एक ही जर्नल्स है। ओके, देन ऑस्ट्रेलिया में टोटल 123 जर्नल्स है, ओपन एक्सेस जर्नल्स। देन कमिंग टू द इंडिया, 766 journals are available. Okay, so using this particular interface, you will be able to come to know how many journals are there. Okay, that has been published by each country. So let's click on the India. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्च बाय व्हाट टाइटल, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा होगा या बी से स्टार्ट हो रहा होगा, लाइक दैट वे। सो लेट अस स्टार्ट विद से नेम सी से स्टार्ट होने वाले जर्नल्स। ओके, तो दीज आर दी वेरियस जर्नल, जहां पे आपको क्या मिल रही है, उसकी ISSN नंबर जो भी होगा या प्रिंट नंबर जो भी है। ओके, जर्नल का टाइप मिल रहा है आपको। दीज आर सम ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जर्नल। सो लेट अस टॉक अबाउट से करंट साइंस। ओके, सपोज ये जर्नल है, इसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मालूम करनी है। तो सिंपली क्लिक ऑन द करंट साइंस एंड यू विल गेट अ डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके, इंक्लूडिंग उसका URL क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, पब्लिशर की पॉलिसी क्या है। ओके, एक्सेप्टेड वर्जन, नॉट परमिटेड, सबमिटेड वर्जन, नॉट परमिटेड। So various information related to that particular journal. Location, etc. Take one more example. कहने का मतलब इस मेथड से हमको क्या मालूम हो जाएगा कि उस जर्नल की पॉलिसी क्या है। ये तो हमको यहाँ पे इजीली एक्सेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक डिजिटल मेडिसिन। क्योंकि इंडिविजुअल वेबसाइट की URL मालूम करना, उसका पब्लिशर का नाम क्या है, ये मालूम करना, इट नॉट एन इजी टास्क। ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑल दिस हैज बीन इंक्लूडेड वेरी वेल, इंक्लूडिंग द वेरियस पॉलिसीज। इंक्लूडिंग देखो कॉपीराइट का फॉर्मेट कौन सा दिया है, CC बाय NC SA। इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी होंगी कोई फाइल, उसको किसी और के साथ मॉडिफाई करने के बाद हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ओरिजिनल ही आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग पॉलिसी उस जर्नल से रिलेटेड जो भी होंगी, वो सब इंफॉर्मेशन हमको इसी एक वेबसाइट में क्या है, हमको इजीली मिल जाएंगी, rather than visiting the individual website. That was the basic concept of what this particular Sherpa Romeo online tool. This part is clear to all of you? Yes, sir. Good. Next question is कि फेक जर्नल कौन से है और UGC केयर के अंदर जर्नल कौन से है। जहां पे हमारी इंडिया में मैक्सिमम जो पेपर हम पब्लिश करते हैं उसको बोला जाता है कि UGC केयर में पब्लिश करो। ओके, तो UGC केयर के अंदर कौन कौन से पेपर पब्लिश होते हैं और कौन से फेक जर्नल्स है, ये लिस्ट हमको कहाँ से मिलेगी। ओके, तो ये सब लिस्ट हमको मिलेंगी SPPU। ओके, तो SPPU क्या है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, जहां पे ये इन लोगों ने क्या किया है, वहां पे एक सेंटर ओपन किया है और वो ये सब चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ predatory publication, there is a specific committee has been formed, okay, just to check the kind of publication that has been made by each and every journals. So UGC come with a concept called as care. Okay, care list journal, to where one will be able to publish their paper in an authenticated journals.
इन ऑथेंटिकेटेड जर्नल्स। ओके, नहीं तो क्या हो रहा है आजकल बहुत सारे जर्नल्स ऐसे बन रहे हैं कि जहां पे पैसे लिए जा रहे हैं और आपके पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल। ओके, एंड एज वी हैव सीन इन द बिगनिंग, जितना जर्नल आपका पेपर अगर अच्छी जगह पब्लिश होता है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू विल गेट अ मच मोर रिकॉग्नाइजेशन देन पब्लिशिंग योर पेपर इन अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस और लो लेवल journal. Okay, so in order to protect the author, in order to protect what we can say that the author's work, this particular journals has been come. So UGC has so far more than 38,000 journals. It is maintained more than 38,000 journals based upon your subject. So for it might be possible that certain subject may have a more journals and certain subject may have a very few journals. Okay, so we will see all of them, and it is maintained by whom? It is maintained by Savitribai Phule Pune University, SPPU. So now we will see directly UGC केयर लिस्ट जर्नल कौन कौन से है और क्लोन जर्नल कैसे फाइंड करने का, मतलब डुप्लीकेट जर्नल कैसे फाइंड आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और अगर आपका खुद का कोई जर्नल अगर आपने बनाया होगा आपके कॉलेज ने और उसको अगर हमको SPPU में अगर ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल सेशन में। तो हम जा रहे हैं एक मिनट, UGC केयर। UGC केयर लिस्ट ऐसा भी आप बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। तो आपको सर्च क्या करना है, UGC केयर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू लुक अप इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन टूल। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन बना सकते हो यहाँ पे। ओके, मैं बताऊंगा आपको कैसे करने का है, क्या करने का। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल्स की लिस्ट मिल रही है, UGC केयर 1, UGC केयर 2। UGC केयर 2 में क्या आते हैं आपके बेसिकली स्कोपस वाले जो भी जर्नल्स है वो कहाँ पे दिए गए हैं, UGC केयर 2 में दिए गए हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ कौन से सब्जेक्ट का आपको जर्नल ढूंढना है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सपोज से कंप्यूटर साइंस और सर्च बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या बोलता है कि आप लॉगिन करो, आप लॉगिन करो। अगर आपका खुद का अगर कोई लॉगिन यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन द रजिस्टर हियर और वहां पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी देनी है। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन बनने के बाद क्या बनेगा, आपका एक लॉगिन बन जाएगा, मतलब आप यू विल बी एबल टू एक्सेस। तो आई हैव ऑलरेडी वन, so I will enter my user ID followed by my password. Okay, then I am not a robot and click on login. तो ये मुझे बता रहा, देखिए टोटल कंप्यूटर का हमने बताए थे, कंप्यूटर के टोटल साइंस के अंदर फिलहाल कितने जर्नल्स है 260, सोशल साइंस के अंदर 340, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में कितने 351, मल्टी डिसिप्लिनरी के कितने 16 और इंडियन लैंग्वेज के टोटल कितने हैं 290 जर्नल अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट से कंप्यूटर। तो ये मुझे बता रहा है टोटल कंप्यूटर के कितने जर्नल्स बताए, वो UGC केयर के अंदर टोटल 36 जर्नल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें से अभी फिलहाल एक्टिव कितने ऐसी कोई लिस्ट नहीं आ रही है, टोटल जर्नल्स कितने वो मुझे बता रहा है। कुछ जर्नल इट माइट बी पॉसिबल दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल एक्टाग्राफिका नाम का जो जर्नल है, इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय द UGC इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ओके, सिमिलरली अनदर से टेक मोर एग्जांपल एडवांस साइंस लेटर नाम का कोई जर्नल है, वो भी डिसकंटिन्यूड किया है UGC ने इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 में। ओके, देन बिग डेटा एंड सोसाइटी, पब्लिशर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसका ISSN नंबर क्या है, UGC कौन से ईयर से UGC केयर में आई है, और अभी ये क्या है, इट इज अंडर द स्कोपस एज वेल एज वेब ऑफ साइंस। ओके, इसका मतलब ये UGC केयर 2 में जा रहा है ये। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा मैं। तो फिलहाल सेकंड पेज पे हम जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आपको देखना है स्पेसिफिक जर्नल की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी है
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा, जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड लॉजिस्टिक। तो उसके बारे में मुझे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। यूजीसी केयर के अंदर फिलहाल अभी है या नहीं, ये भी मुझे यहाँ पे मालूम हो रहा है। और उस पर्टिकुलर जर्नल के बारे में मुझे और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका पॉलिसी क्या है, पेपर पब्लिकेशन की पॉलिसी क्या है। तो वो सब मैं यहाँ पे क्लिक करके, मतलब इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उस जर्नल के वेबसाइट पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, so in this way you will be come to know. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार्जेस कितना बोल रहा है वो, आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस बता रहा है यहाँ पे, देखिए $13 में 1300। तो उस पर्टिकुलर जर्नल के वेबसाइट पे जाके हम पूरी उस पॉलिसी जो भी होंगी, पेपर पब्लिश करने की जो भी पॉलिसी होंगी, मतलब वो ईयरली जर्नल है कि बाय मंथली है कि क्वार्टरली है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उस वो सब इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के बाद हमको वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो what UGC is maintaining here, UGC care is maintaining, it is maintaining the information about the various journals related to your topics or related to your subject. Take one more example. Suppose International Journal of Digital Literacy and Digital Competence. क्लिक कीजिए यहाँ पे, फिर से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जर्नल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, and will get the detailed information. From here, we'll be able to know the detailed information about that particular journal, including the processing charge, उनकी पॉलिसी क्या है, एडिटोरियल की पॉलिसी क्या है, आपको सबमिट करना है तो कैसे करने का। ओके, ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Hello, कुछ रिपीट, हाँ कुछ रिपीट करना है मैडम, या कोई क्वेश्चन है? sir. I have question. यस प्लीज। सर वो जर्नल्स डिसकंटिन्यू क्यों करते हैं सर? उसका कुछ चार्ज होता है क्या? जो पे नहीं किया है तो डिसकंटिन्यू हो जाता है? ना 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 ना, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल। जर्नल, कुछ जर्नल क्या करते हैं भाई, पैसा ज्यादा मिलना चाहिए करके एक ही इसमें बहुत सारे पेपर पब्लिश करवा डालते हैं, भली क्वालिटी चेक नहीं करते, उसकी पेपर की क्वालिटी चेक नहीं करते हैं। इसलिए यूजीसी जो कमिटी है वो क्या करती है, चेक करते रहती है कि उस जर्नल की क्वालिटी उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन रखे हैं या नहीं रखे। अगर उन्होंने नहीं रखे होंगे तो उसको क्या करते हैं, वो डिसकंटिन्यू करते हैं। क्लियर? ओके सर, यस सर। Because there is a committee has been formed just to check the whether the particular journal has maintained its quality or not. But कुछ जर्नल्स ऐसे हैं कि मतलब पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी पेपर वहां पे पब्लिश करा देते, प्लेगरिज्म चेक नहीं करते, पीयर रिव्यू नहीं कराते उसका प्रॉपरली। ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन रीजन, so due to which this committee may discontinue those journals. Okay, so here you will get what all the information. क्योंकि कुछ क्या क्लेम करते हैं अभी भी, क्योंकि हमको मालूम रहता है कि वो जर्नल अभी भी, क्योंकि जर्नल तो है अभी भी लेकिन वो कंटिन्यूड है, यूजीसी के साथ है कि नहीं हमको मालूम नहीं रहता। और हमको वहां पे क्या लिखा रहता है उनके जर्नल के टाइटल के ऊपर, यूजीसी केयर जर्नल, लेकिन वो कंटिन्यू है कि नहीं कंटिन्यू वो वहां पे मेंशन नहीं करते। और हम क्या करते हैं, वहां पे गलती से वहां पे पेपर पब्लिश कर डालते हैं और हमको बाद में पता चलता है कि भाई ये तो डिसकंटिन्यू हुआ है। तो कभी भी आपको पेपर पब्लिश करने के पहले इस पर्टिकुलर यूजीसी केयर के इसमें आ जाइए और चेक कर लीजिए कि जहां पे आप पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं वो फिलहाल एक्टिव है या नहीं, मतलब कंटिन्यूड है या नहीं है। आप यहाँ से पहले देख लो और उसके बाद ही आप क्या करो, पेपर वहां पे पब्लिश करो। क्लियर? दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो, तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे क्या मिलेंगे, जर्नल्स मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। नाउ द सेकंड थिंग इज, एक मिनट अगेन, यूजीसी केयर लिस्ट में आप यहाँ पे न्यू सबमिशन भी देख सकते हो, जो नए नए जर्नल्स आए उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है। नाउ अगर आपको स्कोपस में पब्लिश करना है तो स्कोपस के कौन कौन से जर्नल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूजीसी केयर 2 में क्या क्या आता है, देखो, साइंस एंड साइटेशन इंडेक्स, ठीक है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, या फिर स्कोपस वाले हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्कोपस सोर्स लिस्ट, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो स्कोपस के अंदर कौन कौन से जर्नल्स है उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली जो डिलिस्ट की गई, मतलब वहां से निकाल दी है, उसकी भी आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी, इतने सारे डिसकंटिन्यू किए।
So all this information is available over here only. Now, अब केयर लिस्ट यूजीसी केयर लिस्ट 1 में हम सर्च कर रहे हैं, फिर से वही स्क्रीन आएगी जो अभी हम पहले दिखाई थी। ठीक है, वही स्क्रीन है यहाँ पे फिर से। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, या फिर हमने जो पहले मेथड बताया वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। एनी मेथड यू कैन फॉलो। नाउ यहाँ पे हमको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल्स। मतलब जो क्लोन जर्नल मतलब क्या है, जो हूबहू हमको ओरिजिनल जर्नल के समान ही दिखता है, लेकिन वो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से जर्नल्स है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ये देखिए, कोई जर्नल है बनाना चैन, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, पब्लिशर कौन है, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नाम वही है, खाली उन्होंने क्या ऐड किए, जर्नल ऐड किया नाम आगे में। ठीक है, और ओरिजिनल में देखिए, ओरिजिनल लिस्ट में उनकी खुद की कोई वेबसाइट है ही नहीं। ये क्या है, प्रिंट जर्नल है, इट इज अ प्रिंट जर्नल। इनका मतलब उनका वेबसाइट में कुछ है ही नहीं, नंबर 9 वाला। इन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाई है, और सभी लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसी को ढूंढेंगे, और जनरली पेपर लोग इसी में पब्लिश करा डालते हैं। ओके, तो रिमेंबर, ऐसी क्लोन जर्नल की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है, नॉट इंक्लूडेड इन द यूजीसी केयर लिस्ट। जनरली उनके इसमें क्या लिखा रहता है, नाम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अब्रू, इट इज अब्रू जर्नल, दैट्स ऑल। ओके, लैंग्वेज कौन सी है पे, पंजाबी, और इन्होंने क्या बोला, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो ऐसी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। चेक कर लीजिए पेपर पब्लिश करने के पहले कि आप जो जर्नल में पब्लिश करने जा रहे हो वो रियल है कि क्लोन जर्नल है। रियल है कि क्लोन जर्नल है, वो यहाँ से आप पहले चेक कर लो, उसके बाद ही यू आर गोइंग टू डिसाइड। क्योंकि एक बार पब्लिश पेपर हो गया पब्लिश, और बाद में अगर हमको पता चलता है कि वो क्लोन जर्नल है, तो देयर इज नो मीनिंग, ओके, इन रिग्रेटिंग। So make sure that before publishing your paper, whether your paper that you are going to publish, whether it is authenticated or not, the journal is authenticated or not, that is a thing that you need to check, okay, by visiting this particular what you can say online tools. Similarly, there is a UGC केयर लिस्ट के बारे में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। Now, अगर आपको न्यू जर्नल आपको कोई सबमिट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड द जर्नल सबमिशन फॉर्म। तो वहां पे आप डाउनलोड करके आप जो भी नया जर्नल है उसकी इंफॉर्मेशन, जो आप अज्यूम करते हैं कि आपका कॉलेज कोई जर्नल पब्लिश कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसको यूजीसी के अंदर में लाने का है, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन आप भर दीजिए। देन कमिटी विल चेक वेदर योर जर्नल इज रियली वर्थ और नॉट, एंड बेस्ड अपॉन दैट इट मे इंक्लूड और इट मे नॉट इंक्लूड। क्लियर दिस पार्ट ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, so that is what all about the UGC के बारे में। यहाँ पे UGC, तो प्लीज रिमेंबर इट इज मेंटेन बाय द सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, SPPU, दैट्स द बेसिक नेम, बाकी कुछ नहीं है। Then next thing that we are going to discuss here is about journal finders. Now, how to identify which journal is good for your subject? Yes, any guidelines? कौन सा जर्नल बेस्ट है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्या क्या फैक्टर्स रह सकते हैं उसके? कंटेंट के बेसिस पे। कंटेंट के बेसिक पे, ओके। हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से कंटेंट वहां पे अच्छे पब्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? रीड करके। अब इतने सारे जर्नल्स को हम रीड नहीं कर सकते, हजारों जर्नल्स है, तो हमको कुछ एक मतलब गाइडलाइन तो चाहिए ना कि डिसाइड करने के लिए कि भाई ये जर्नल अच्छे है या नहीं। किसी ने रेटिंग दी होगी सर। गुड, ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, वन पैरामीटर। हम वन पैरामीटर बोलेंगे जिसमें हम कुछ रेटिंग दी गई होंगी उस जर्नल के बारे में। फॉर एग्जांपल बताया गया होगा कि पीयर रिव्यू है, या फिर इम्पैक्ट फैक्टर है, या फिर स्कोपस इंडेक्स है। ओके, these are the some of the what parameter. On that basis, generally we decide what whether the journal is really good or not. Okay, then of course the citation वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। Okay, so we need what certain guideline. So what is that guideline? तो सबसे पहले of course read the various article related to your subject. पहले देख लो कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल है। That is the first thing that you need to do. कि हमारे जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल है।
अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप अपने आपको सीनियर से, आपके गाइड वगैरह आपको बता सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से जर्नल्स है। या फिर मैंने अभी आपको जो दिखाया था वेबसाइट, ओके, डीओएजे में भी जाके आप मालूम कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल्स है। या फिर एसपीपीयू में भी जाके आप यूजीसी के लिस्ट के कौन कौन से जर्नल्स है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप वहां पे मालूम कर सकते हो। ओके, तो इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से जर्नल्स है आपके सब्जेक्ट में। देन प्लीज नोट डाउन, हो सकता है कि वो जर्नल अगर मल्टी डिसिप्लिनरी होगा तो किस टाइप के सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड कर रहा है ये भी आपको देखना है। और अगर सब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं, कोई ऑर्गेनिक वाला पब्लिश कर रहा है, कोई इनऑर्गेनिक वाला पब्लिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो बेस्ड अपॉन दैट फिजिक्स में भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो पहले उसमें भी देखो कि सब सब्जेक्ट कुछ है क्या, या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही पब्लिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब नैनो फिजिक्स जर्नल, तो हो सकता है कि उसमें क्या हो जाएगा, खाली नैनो फिजिक्स वाले ही पेपर पब्लिश होंगे। तो इसलिए वो भी चेक करो कि सब सब्जेक्ट कुछ है क्या। ओके, देन उस सब जनरली हमको ये भी देखना रहता है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस जर्नल के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हम वहां पे देख सकते हैं। जर्नल के बिगनिंग में दिया रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ओके, देन चेक कि वो स्कोपस वगैरह है या नहीं है। देन इम्पैक्ट फैक्टर कितना है उसका, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये भी आप देख सकते हो। So these are the some of the common parameter. On that basic, you are going to search what a specific journal where you can publish your paper. Okay, and of course the peer review is there. Then some of the tools are available. कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो आपको बता देंगे कि आपको पेपर कहाँ पे पब्लिश करना चाहिए। तो क्यों हमने ये टूल्स यूज करना चाहिए, ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू सेव अवर टाइम, क्योंकि इंडिविजुअली एक ढूंढना इट्स वेरी टेडियस जॉब। यूजिंग द टूल यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सम ऑफ द बेस्ट जर्नल्स। देन आपको इस जर्नल मतलब हम जो मेथड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी केयर के जर्नल लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो क्लोन है या नहीं है, क्या है, क्योंकि यूजीसी मेंटेन कर रहा है प्रॉपर जर्नल। ओके, तो दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो व्हाट सर्टेन टूल्स। ये भी आपको बताएगा कि वो लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। ओके, तो elsewhere journal finder is one of the tools using which you will be able to search the various types of journal that are available related to your subject. Then second one is Springer is there, then Jane is there, then IEEE. Okay, similarly आप Google Scholar में भी use कर सकते हो। So there are various journal finders are available where you will be able to search a specific article related to your topic. Okay, so now we will discuss about elsewhere. मेथड जो है सभी इसमें सेम है, सर्च करने की जो टेक्निक है सभी इसमें सेम ही है ऑलमोस्ट ऑल। तो मैं खाली यहाँ पे भी जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ खाली एल्सवेयर के बारे में। तो क्या मेथड रहेंगी किसी भी इसमें जाने के लिए, सबसे पहले वेबसाइट पे जाओ, आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो आप सर्च करना चाहते हैं वो बताओ, या तो टाइटल बताओ या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर कीवर्ड। ओके, तो ऑन दैट बेसिक इट विल लिस्ट व्हाट वेरियस जर्नल एंड व्यू द डिटेल्स ऑफ द जर्नल। So these are the what basic steps in order to search any journal. So we are going to discuss about what elsewhere journal finder. Click on this. So this is the basic interface. आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उससे रिलेटेड आपके एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से वो क्या बता सकता है, आपको जर्नल की लिस्ट बता सकता है। दिस इज द बेस्ट वे टू सर्च योर जर्नल। ओके, आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करो और उसके हिसाब से क्या करेगा वो स्पेसिफिक जर्नल आपको ढूंढ को देगा। दिस इज द बेस्ट वे आई एम सेइंग। ओके, अदरवाइज आप क्या सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट कीवर्ड या फिर एम एंड स्कोप ऑफ द जर्नल। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ड ऑन ओके find journals. So there is no matching journals have been found related to this particular topics. Okay, no problem. So it is showing you so many. First one is computer communication with the ISSN number.
देखिए यहाँ पे आपको उस जर्नल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका साइट स्कोर कितना है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, जर्नल का जनरली कितने परसेंटेज पेपर एक्सेप्टेंस के रेट है। देखिए 17%, मतलब 100 लोग अगर पेपर इसमें पब्लिश कर रहे होंगे, मतलब अपना भेज रहे होंगे, तो खाली 17 लोगों का पेपर सिलेक्ट हो रहा है। ओके, टाइम टू बी जनरली कितने वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ या नहीं, ये भी यहाँ से मिल रही है। देन ओपन एक्सेस में कितना खर्चा लग रहा है, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन मतलब खाली उसको देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इस तरह की आपको क्या मिलेगी, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगी, मतलब पैरामीटर्स मिलेंगे आपको। जो बाकी के हमने जो वेबसाइट दिखे उसमें ये सब हमको पैरामीटर्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस व्हाट एल्सवेयर जर्नल फाइंडर रिलेटेड टू योर टॉपिक। सेकंड से कंप्यूटर नेटवर्क, ये कोई जर्नल है जिसका एसएस नंबर दिया और बाकी की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जर्नल। Okay, so in this way you will be able to search the various information about various what we can say that the various parameters about that journals. So it has been maintained by the what elsewhere. Similarly, Springer is also maintaining this kind of information, and there are more than 1 lakh journals are available under this particular elsewhere. देखिए यहाँ पे ये क्या फ्री ऑफ चार्ज है, देखिए कोई चार्ज नहीं ले रहा। Acceptance rate is 27%. Okay, so using this technique, you will be able to know the various kinds of information related to the journals. Clear to all of you? नाही Hello. किंडल वर कोणतं पुस्तक आलंय का? Kindly mute, sir, please yourself. Hello. ते आपल्या इथं बनसोडे सरांकडे आहे. मॅडम कडे नाही का? कुलकर्णी मॅडम कडे नाही? Hello, Samrin ji. Hello, Samrin ji. Kindly mute yourself. Vishal sir, kindly mute yourself. Kindly request host to mute. Okay, whether this concept is clear, how to find out the information about the journals? Yes, sir. Okay, thank you. मॅडम अशीच पुस्तकं वाचायला आपल्याला टाइम भेटेल का? असंच वाचायला वेळ झाला. होस्ट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली म्यूट देयर सेल्फ. विशाल सर, आर यू देयर? वेबसाईट वर नाही सापडलं. Okay. Next thing that we are going to discuss is the last part, of course. यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकते हैं. श्री राम रसायन. गणेश सर तुम्हाला म्यूट करा. Yes, any doubts? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? कोणतं पाहिजे तुम्हाला इंडिया? No, sir. पर्पल नाही आता आलं. हे पण आहे. पाशी एक खंड एक. सर गणेश बोल के बोलिए उन्हें. गणेश सर बोल के बोलिए. ओके ओके. गणेश सर, हेलो. गणेश सर, हेलो. गणेश सर, हेलो. गणेश सर. ओके, उन्होंने शायद ईयरफोन बाजू नीचे में रख दिया होगा. एनीवे, नो इशू. ओके, कंटिन्यू. तो यहाँ तक किसी को डाउट्स? See what we have seen right from the beginning. Okay, first of all we have seen the DOAJ, जहाँ पे various types of journals हमने देखे कैसे ढूंढने का. Okay, including the national, international. खाली येत असेल बघा. झिरो म्हणायला मी. Then we have discussed about. Yes, Ganesh sir. किसी के पास अगर सर का नंबर होगा तो उनको कॉल कीजिए प्लीज. So let us just simply
revisit what we have discussed so far. Of course, the entire at the beginning we have seen about the first practical that we have discussed is about what is DOAJ. Okay, it is maintaining the various information about the journals all over world. Then we have discussed about how to create your Creative Commons. Creative Commons में मतलब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, हमारे खुद के अगर जर्नल्स होंगे, खुद के कोई आर्टिकल्स होंगे या फिर कोई भी ई रिसोर्सेस होगा, उसको अगर किसी के साथ शेयर करने का होगा तो उसको कौन से फॉर्म में हम अलग अलग फॉर्म में हम उसको शेयर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कस अंडर दिस. देन इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी हैव डिस्कस अबाउट कितने मतलब इंडिया में कितने जर्नल्स है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने कितने जर्नल्स है और उसकी पूरी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, उसकी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब वेदर हम उस चीज को कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेपर को, ये सब इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर ऑनलाइन टूल से मिल जाएगी. देन वी हैव डिस्कस अबाउट UGC care list journal. Okay, UGC is maintaining the various journals in the form of what UGC care 1 and UGC care 2. UGC care 2 are basically Web of Science and Scopus journals. Okay, and from time to time it is continuing some new, from time to time it is adding new journals as well as discontinuing some of the earlier journals. Okay, so before publishing any paper, visit this particular UGC care list and check the journal where you are going to publish a paper is active or not. That is what we are discussing under this. Then we have seen about the how to find various information, various parameters related to the journals like citation, impact factor, and other important parameters related to the journal, whether they are peer review or not, and what is ISSN number or not. So all this information is available, easily available in elsewhere. So please remember, एक्सेप्ट SPPU जहां पे आपको खुद को रजिस्टर करना है, बाकी कहीं पे भी आपको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, एंड यू आर एबल टू एक्सेस वेरियस इंफॉर्मेशन. ओके, एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शोध गंगा. शोध गंगा, what is शोध गंगा? शोध गंगा is a database management of all the PhD holder across the various state of India. Okay, various universities of the state of within India. Okay, तो जितने भी थीसिस जहां कहीं भी हो रही है, थीसिस सबमिट हो रही है, वो सब की सब थीसिस हमको क्या करना है, एट द एंड शोध गंगा में हमको सबमिट करना है. हमको मतलब यूनिवर्सिटी को. प्लीज रिमेंबर, आपका यूनिवर्सिटी में जब आपका सक्सेसफुल अवार्ड हो जाता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है एज पर द UGC नॉर्म दैट दे शुड सबमिट द थीसिस इन द शोध गंगा रिपोजिटरी. ओके, सो अगर आपका टाइटल वगैरह अगर डिसाइड होने का होगा, जैसे कि आप लोगों ने मुझे पिछले बार कहा था, तो आप क्या कर सकते हैं, इस शोध गंगा में जाके पहले चेक कर लो कि आप जो टाइटल देने जा रहे हो, ऐसा कोई टाइटल ऑलरेडी किसी ने सबमिट किया है क्या नहीं किया. अगर किया होगा तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप चेंज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप क्या करो, चेंज कीजिए. ओके, सो अब इसमें कैसे जाने का और कैसे इसको देखते हैं, तो वो दैट वी विल डिस्कस. Again, it will take a certain time. In the meantime, if you have any doubt, you can ask me. Pardon? आहे Hello? ना, पण ते तर नाही घेत. मला वाटलं तुम्ही माझ्यासारखं काउंट टाईप हे जे आहे ना, नाही असं असतंय, ही जी लँग्वेज आहे ना, ही लँग्वेज वेगळी आहे. गणेश सर? युनिक मॅडम. ह्या साईट म्हणजे हा, गुगल वरची आणि ही जी असते ती वेगळी आहे. It is taking a time. Just wait. दोनच आहेत, श्री भावार्थ रामायण खंडे काय सर मराठे सरांना कॉल करा सर, सांगा त्याने सांगतात त्याला. Oh. तो जब तक लोड नहीं हो जाता, काइंडली सर लेक्चर संपलं का आहे? चालू आहे. सर तुम्ही म्यूट करा प्लीज. बस, ओके, थँक्यू.
हाँ कुछ नहीं सर, वो उन्होंने म्यूट कर लिए, ठीक है, थैंक यू सर। नहीं उनका मतलब ये चालू था ऑन, सर एक जन का माइक चालू था तो उनको मैंने बोल दिया, ठीक है हो गया सर। मैं आपको कॉल करता हूँ सर, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थैंक यू गणेश सर। So this is a Shodhunga that has been maintained by the UGC, okay, and it is what Indian Electronic Thesis and Dissertation. It is maintaining the information about all the thesis, okay, जितने भी अवार्ड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि अभी तक कितने यहाँ पे मतलब थीसिस मिलेंगे आपको, 98,129 थीसिस, ओके, और ये हर दिन अपडेट होती रहती है, हर दिन ये अपडेट होती रहती है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट की कितने कितने थीसिस यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सिनॉप्सिस भी दी है, पीएचडी थीसिस है, एमआरपी जो माइनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट या माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट किसी ने अगर सबमिट की होंगी तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ओके। तो दिस आर दी वेरियस इंफॉर्मेशन। सिमिलरली यहाँ पे आपको भी ये भी मिल जाएगा कि कितने यूनिवर्सिटी ने अपने अपने स्टूडेंट की थीसिस यहाँ पे अपलोड की है। देखो फॉर एग्जांपल अन्ना यूनिवर्सिटी ने 14,000, सावित्रीबाई फुले 12,000, बाबा साहेब बिहार की, ओके, सो लाइक दैट वे शो ऑल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो स्वामी रामानंद तीर्थ, यस यस यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये यस डब्ल्यू, स्वामी रामानंद तीर्थ, वही नाम है ना अपना कि कुछ चेंज है? स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 5,428 है। हाँ ये यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सॉरी, हाँ 5,428, ओके। तो इतने सारे क्या है यहाँ पे, मतलब बेसिकली थीसिस वहां पे अपलोड की गई। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। तो प्लीज रिमेंबर ये हमारा काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम है, ओके। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या लेना है आपको, कि आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसने कौन कौन से टॉपिक पे थीसिस सबमिट किए। टेकिंग अ टाइम, जस्ट वेट। So it's a very few. If you take the figure, it's a very few. Okay. तो स्वामी रामानंद तीर्थ का यहाँ पे आ गया है। सोशल साइंस के कितने वहां पे सबमिट हुए, 736, ओके। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर पे ऐसे अलग अलग टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ईयर वाइज कौन कौन से है, लैंग्वेज वाइज यहाँ पे दिया गया है, एंड सो ऑन। सो वी विल डिस्कस फिजिकल साइंस से रिलेटेड, देखते हैं हम क्या क्या है। ठीक है, तो सपोज हम ढूंढना चाहेंगे कि ईयर वाइज में लिखना चाहेंगे, हम देखेंगे गाइड के नाम के हिसाब से भी आप ढूंढ सकते हो कि हर एक गाइड के अंदर कौन कौन से थीसिस मतलब वहां पे सबमिट हुए उनके कैंडिडेट के, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ करंट फिल्टर, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये टाइटल है, रिसर्चर कौन है उसका नाम है, गाइड का नाम यहाँ पे दिया है। ठीक है, हम कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं और उसकी पूरी पीडीएफ फाइल हमको मिल जाएंगी, मतलब पूरी की पूरी थीसिस हमको यहाँ पे मिल जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे, उसका यूआरएल मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है उसका टाइटल क्या है, उसका सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का एब्स्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन वगैरह 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 जो भी है। तो प्लीज रिमेंबर जब आप थीसिस सबमिट करते हैं ना, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी इसी फॉर्मेट में मांगती है इंफॉर्मेशन, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना रहता है, इंफॉर्मेशन सबमिट करना रहता है। तो यू विल बी एबल टू सी द वेरियस इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी है आपकी
तो अजूम करते कि ये टॉपिक आपके मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हो कि भाई उन्होंने किस एरिया पे एग्जैक्टली काम किया है, किस एरिया पे एग्जैक्टली काम किया है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, वो भी आप देख सकते हो। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लिया होगा वो पैरामीटर अपने वर्किंग में, तो उसके हिसाब से भी आपको एक आइडिया मिल जाती है। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको क्यों जाना है, ये चेक करने के लिए कि आप जो टॉपिक लिए है, आपने जो सिलेक्ट किए हैं, वो आपने प्रॉपरली डिजाइन किया है कि नहीं है, ये भी आपको यहाँ से बेसिकली आइडिया मिल जाती है। ओके, so that was the basic reason that one should visit Ashwagandha, okay, or Ashwagandha, okay, and check the kind of work that has been done by the earlier author, earlier researcher. That was the basic motto behind visiting this particular website. Clear to all of you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट आपको किसी को? No, sir. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, प्लीज, बहुत सारे, मतलब जितने भी कितने दिखाए हमको, टोटल 300 कुछ भी दिखाया था, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 5400, और उसमें से भी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे फिजिकल साइंस का देख रहे थे। ओके, तो यूजिंग दिस मेथड यू विल बी एबल टू नो कि हर एक ऑथर का कौन से दिन इन्होंने अपलोड किए। प्लीज रिमेंबर, अपलोडेड मतलब ये नहीं कि उनको अवार्डेड डेट है, इट इज समथिंग एल्स। ओके, डोंट कंफ्यूज विद द अपलोडेड डेट विद द अवार्डेड डेट। सर अगर आपका चेक करना का रहा है तो फिर कैसे चेक करना सर उसके अंदर? क्या बोले सर? सर अगर आपका चेक करना है, मतलब कि आपके मुझे थेसिस चेक करना है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर किशोर लिख लीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। सर आप बोल सकते क्या, मतलब आप, हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे थेसिस का। हाँ, तो 2012 का देखना पड़ेगा, और ये अभी कहाँ पे ढूंढ रहा है, एक मिनट, अपने को मेन इसमें जाएंगे। क्योंकि सर वो मैं भी सिनॉप्सिस का बहुत पेपर्स बहुत चेक किया मैंने, बट मुझे इतना कंफ्यूज हुआ उसमें, तो ये मैंने आपको बताया ना अभी, यहाँ पे देखिए, जैसे आप स्वामी रामानंद में आ गए, ठीक है, अभी आपको कौन से टॉपिक पे ढूंढना है यहाँ पे बता दीजिए। सपोज आपको कंप्यूटर साइंस में ढूंढना है तो कंप्यूटर साइंस बता दीजिए, या फिर आपका टॉपिक कौन सा बताइए सर? मेरा फेकेंडिटी ऑफ फिश। पार्डन? जी सर, टॉपिक का थोड़ा टाइटल बताइए हल्का सा। फेकेंडिटी ऑफ फिश। ओके, देखते डायरेक्टली फिश से रिलेटेड क्या क्या मिल रहा है आपको टोटल। ओके, नो रिजल्ट, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नहीं है, स्वामी रामानंद में नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो मैं ले लेता हूँ सपोज यहाँ पे नैनो फिजिक्स। सर ये एज मतलब सिनॉप्सिस में भी अपन ऐसा अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल गंगोत्री। बिल्कुल, वही तो स्टार्टिंग में दिखा था मैंने आपको जी। मैं होम पे जाता हूँ, एक मिनट, होम पे क्लिक कर देते, फिर से एक बार देखते स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में जितने भी मतलब थेसिस है उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो मेंटेन कर रहा है, प्लीज रिमेंबर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता चल रहा है, ईयर वाइज भी पता चल रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज कितने यहाँ पे सबमिट किया जा रहा है। इंक्लूडिंग द लैंग्वेजेस। Take the time again. Let me refresh it. देखिए सर, एट द बिगनिंग में यहाँ पे सिनॉप्सिस की इंफॉर्मेशन, सिनॉप्सिस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सर्च द सिनॉप्सिस इन गंगोत्री। सपोज मुझे ढूंढना है यहाँ पे फिश से रिलेटेड कुछ, देखते क्या है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे आ गए, देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फिशिंग ऑक्यूपेशन ऑन द फिशिंग कम्युनिटी,
ओके, द स्टूडेंट ऑफ एंड लाइक दैट वे, बहुत सारे मिल रहे हैं आपके। अब आपको एग्जैक्टली आपने जो बताया वो आपको टोटल ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। Okay, so in this way you will be able to search the various synopses also. थैंक Not यू only- सर। Okay, so the thing is that again my concern is that before preparing your synopsis, final synopsis, visit this particular Shodhangotri and then only decide the kind of objectives and overall synopsis that you are going to prepare. Okay, तो एक बार यहाँ पे जाने के बाद ही आप अपना फाइनल सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए, उसके पहले मत कीजिए। अगर हो सकता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए और अगर ऑलरेडी किसी ने अगर कवर किया होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा किसी ने अगर काम किया तो उसने एग्जैक्टली कौन से लेवल तक काम किया, उसको आप कितना और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल बाय विजिटिंग दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से ऑनलाइन टूल्स। यस, एनी मोर डाउट्स? सर कैसेट में देना है शायद सीडी में, पर सर वो कैसे डालने, मतलब कॉपी करें उसके अंदर? समझा नहीं मतलब? सर कैसेट में या फिर सीडी में देना है सिनॉप्सिस? हाँ, तो आपका जो भी मतलब वर्ड फाइल में आपको जो बताएगा होगा, आपको यही बताएगा होगा कि वर्ड फाइल में आपको सबमिट करना है, तो वर्ड फाइल में आपको सबमिट करना है, दैट्स ऑल। ओके सर। आप जो सिनॉप्सिस बना रहे हैं ना, आप जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाते हैं, तो वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है उसी को आपको क्या करना है, मतलब सीडी फॉर्मेट में देना है, मतलब सीडी में कॉपी करके देना है, नॉट सॉल्व, सीडी में सर कॉपी आजकल, करके देना है। जी सर, आजकल पीसी में भी और लैपटॉप में भी सी ड्राइव नहीं आ रहे। किसके? लैपटॉप्स में भी सीडी ड्राइव नहीं है सीडी इंसर्ट करने के लिए। तो आप क्या उसके लिए तो बहुत सारे मेथड हैं सर। आप मतलब पेन ड्राइव में लीजिए और जहाँ पे सीडी है एक्सेसिबल, वहां पे जाके आपको करना पड़ेगा कॉपी। ओके सर। यस, आजकल नो डाउट आजकल नए मतलब जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें जनरली सीडी ड्राइव नहीं रहता है। ओके, लेकिन आपको मतलब बहुत सारे मतलब कैफेज में भी आपको अगर जाएंगे तो आप वहां पे भी आपको मिल जाएगा। यस, एनी मोर डाउट्स? So we have covered almost all the points that has been asked me by the Vishal sir, that open access publication, and we have seen about this software tool under the SPPU and how to find the various journals. Okay, so if you have any doubt, please ask me. Otherwise, we will conclude here only. SPPU क्लियर हो गया आपका सभी का? यस सर। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आप जब वेरियस इंफॉर्मेशन जब डाउनलोड करते हैं तो उसको आप कहाँ पे मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? तो उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, दैट वी विल डिस्कस हियर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मेरे इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, जोटेरो। ओके, अपार्ट फ्रॉम द वेरियस, here you will find what? A Zotero. So what is the use of this Zotero? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि Zotero को पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इट्स वन ऑफ द टूल, इट इज वन ऑफ द टूल दैट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड। ओके, एक बार जब डाउनलोड करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे, प्लीज रिमेंबर, आपके डेस्कटॉप पे आपको ये इस तरह का एक क्या मिलेगा आपको, आइकॉन या फिर ऐप बोलेंगे, एप्लीकेशन, यहाँ पे डाउनलोडेड मिलेगा आपको। जब भी आप डाउनलोड करेंगे Zotero को, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस तरह का एक ऐप या एप्लीकेशन बोलेंगे जिसको हम, इस तरह का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल मिलेगा। सिमिलरली जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये टैब अपने आप क्या हो जाएगा, आपके इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे वर्क करने की कोशिश करता हूं तो देखते क्या हो रहा है। लास्ट टाइम हमने देखे थे रैंडम फंक्शन, गुड पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे सपोज मुझे साइटेशन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए वो क्या बोल रहा है, वर्ड कुड नॉट कम्युनिकेट विद द Zotero।
word could not be communicate with the Zotero. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक फिलहाल Zotero एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं की है, Zotero एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट नहीं किया। तो स्टार्ट करना मतलब क्या? सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। एंड दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ Zotero। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? जो भी आपने अभी तक इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी ई रिसोर्सेज बोलो आप, जिसने आपने ऑलरेडी डाउनलोड किए है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, लेट्स टॉक। वी विल क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल वन न्यू फोल्डर, न्यू लाइब्रेरी। Enter the name of new collection, for example, Science College Nanded। ठीक है, यहाँ पे बन गया एक साइंस कॉलेज नांदेड़। तो फिलहाल यहाँ पे हमने कोई भी ई रिसोर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड नहीं किए है। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमने कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में, कोई भी सोर्स हो उसकी इंफॉर्मेशन हमने फिलहाल यहाँ पे कोई ऐड नहीं की। तो कैसे कर सकते हैं? देयर आर वेरियस मेथड। फर्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा जो हमने वर्ड में किए थे। अगर आपको याद में होगा, वर्ड में हम कैसे करते थे इंफॉर्मेशन ऐड न्यू सोर्स, इंसर्ट साइटेशन बोलते थे। इंसर्ट साइटेशन के बाद ऐड न्यू सोर्स लेते थे, और फिर मैन्युअली हम सब ये लिख रहे थे। मैन्युअली जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम मैन्युअली भर रहे थे। तो हमको ऐसा कोई टूल है क्या कि जिसमें हम बिना ये सब लिखे ऑटोमेटिकली हमको मिल जाए? ओके, तो यस। ओके, आंसर इज यस। तो उसके पहले अगर मैन्युअली अगर यहाँ पे करना हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज बुक। तो बुक के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि टाइटल ऑफ द बुक क्या है। फॉर एग्जाम्पल से रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स, ऑथर के नाम, एब्स्ट्रैक्ट वेब्स्ट्रैक्ट जो भी देना है वो सब देते बैठो, एंड फाइनली दैट्स ऑल। ओके, देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया। नाउ सेकंड मेथड है कि हम उसका आईएसएन नंबर, किताब का आईएसएन नंबर या फिर डीओआई नंबर, ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, और उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अपने आप एक्सट्रैक्ट करेगा डीओआई, बेस्ड ऑन डीओआई। तो अपन देखेंगे कैसे। तो एक हरा जर्नल जिसका डीओआईजे नंबर देखते हैं हम क्विक मिल जाता है क्या। एक हरा हम देख रहे हैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे। उसका आईएसएन नंबर है, यहाँ पे मिल गया आपको। देखते हैं, ये नंबर से हम ट्राई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने कॉपी की यहाँ से, आईएसएन नंबर ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, देखिए क्या हो रहा है, could not find identifier। okay, try with next number। लेट मी ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, हमने ऑलरेडी किए थे, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। Okay, let me search first।
In the meantime, we will go with the third way. The third way is very simple. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वेबसाइट पे जा रहा हूं, citation, plagiarism and citation, plagiarism and citation. अज्यूम करते हैं कि ये कोई पेपर है और इसकी ये जितने भी लिखा होगा उसकी मुझे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी मुझे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब मुझे सोर्स चाहिए इसका। तो ये कैसे मिल सकता है हमको? देखिए, let me search it first. Again, we will add one more book. Now we have basically how many books are there? Basically 2 books under the folder called as Science and College at Nanded. Okay, how to add it? Now the पे क्लिक कीजिए और add edit citation पे क्लिक करना है हमको। कौन से स्टाइल में हमको चाहिए? इनिशियली हमने देखे थे वर्ड में हमारे पास खाली वेरी फ्यू स्टाइल्स आते हैं। लेट्स सी कौन से स्टाइल्स हमारे पास वर्ड में रेफरेंसेस के अंदर। APA, Chicago, Harvard, IEEE, and so on. So almost 9 to 10 styles are there, but in more than 10,000 styles are available. More than 10,000 styles are available, so that you can include using this Zotero. Okay, for example, अगर आपको एल्सवेयर में चाहिए तो एल्सवेयर ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस रिव्यू में जर्नल में अगर आप पब्लिश कर रहे हैं और उनका कोई स्पेसिफिक मेथड होगा साइटेशन देने का, तो वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो एंड सो ऑन। अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन द मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल के अंदर फिर से आप बोल सकते हैं गेट एडिशनल स्टाइल्स। So observe that there are more than 10,000 styles are available over here. 10,455 styles are available for you. Okay. अगर आपका सब्जेक्ट सपोज से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से आप क्लिक कीजिए, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको कितने स्टाइल्स मिलेंगे? 229 बेस्ड अपॉन द जर्नल। अगर अज्यूम करें कि आप अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं अकाउंट एंड केमिकल रिसर्च के अंदर, तो उसमें किस तरह का साइटेशन हमको देना है। ओके, सपोज वो है ACI मटेरियल जर्नल, तो वहां पे हमको किस तरह का साइटेशन देना है। तो बेस्ड अपॉन द पेपर जहां पे आप पब्लिश कर रहे हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
हम साइटेशन दे सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एसीएस नैनो, एसीएस नैनो के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया है, सिंपली सिलेक्टेड। ओके बोल दो। फिर से जोटेरो में जाएंगे हम, ऐड एडिट साइटेशन और सिलेक्ट करेंगे एसीएस नैनो। सिंपली क्लिक ऑन दी ओके। अब हमको यहाँ पे बताना है कि हमारा सोर्स कौन सा था, तो हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे इसमें दो है, प्लीज रिमेंबर। सिलेक्ट करो कीप सोर्स साइट सॉर्टेड और क्लासिक व्यू, तो सिलेक्ट क्लासिक व्यू। अंडर द फोल्डर साइंस कॉलेज नांदेड़, now we have basically two sources are available, so click on say one of the research methodology। तो देखिए कौन सा फॉर्मेट है ये, IEEE स्टाइल फॉर्मेट है। वन यहाँ पे आ गया, टेक वन मोर। Again add edits, again select the classic view, select the second one in any order, not necessarily in the same order, and so on। And at the end जब आपका पूरा साइटेशन खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, add edit bibliography। Okay, this kind of technique is very much useful using the Zotero, because Zotero provides the n number of tiles compared to your Word, because in Word we have very few tiles are available। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक जर्नल में अगर अपना पेपर पब्लिश करना होगा तो उसके साइटेशन और उसके रेफरेंस टाइल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो यूजिंग Zotero। ओके, दैट वाज द बेसिक एडवांटेज विथ व्हाट, Zotero। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और शैल आई रिपीट एक बार फिर से ऐड करके कुछ? Yes, sir. नॉट ओनली दैट कि यही फोल्डर नहीं, असुम करते कि आपने कोई ऑलरेडी कहीं पेपर पब्लिश किया था, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस फोल्डर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या करना है देखिए फिर से, ऐड एडिट साइटेशन, कर्सर यहाँ पे हम रख रहे हैं। फिर से सिलेक्ट करेंगे हम क्लासिक व्यू। कोई और फोल्डर होगा जहाँ पे हमने ऑलरेडी पेपर डाउनलोड किए होंगे तो वो भी हम क्या सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने आप यहाँ पे आ गया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। ओके, सो Zotero is very much useful। First thing is in order to manage all your resources। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आपकी जितने भी रिसोर्सेस वो सब आपको एक ही जगह मिल रहा है। मतलब हम क्या बोलते हैं, Zotero भी क्या एक बेसिकली फोल्डर ही है, लेकिन यहाँ पे आपके पूरे क्या है, जितने भी आपने सोर्सेज डाउनलोड किए होंगे या फिर उसकी जो भी सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? तो दैट इज द बेसिक एडवांटेज विथ व्हाट, Zotero। यस, एनी मोर पॉइंट्स दैट वुड लाइक टू डिस्कस विथ मी? Okay, so over to organizer। Yes, Sheetal, do you have any doubts? आपने हैंड्स अप किया है, कोई डाउट होगा तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Yes, over to organizer। Okay, if any question, please ask me. Otherwise, we will. Hello. Yes,
हाँ सर, लेक्चर हो गया क्या? Yes, madam. हाँ, किसी तो को आई एम हियर टू okay, hello? yes, please continue, madam. हाँ, आई एम हियर टू रिप्रेजेंट आउट ऑफ थैंक्स सर. Okay, madam, please continue. On behalf of Science College Nanded and course coordinator of this workshop, I would like to sincerely thanks to Dr. S.B. Kishore sir, Head Department of Computer Science. Sir, thank you for nice lecture. Thank you, madam. Okay. बंद करूं क्या सर? Yes, madam, no issue at all. Thank you. Okay. Thank you.